रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल् मंगा पद्मनाभ प्रिया अलमेल् मंगा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल् मंगा पद्मालया पाहि अलमेल् मंगा अलमेल् मंगा पाहि हरिप्रिये अलमेल् मंगा अलमेल् मंगा पाहि मां पाहि अलमेल् मंगा। सुप्रसन्ना पाहि अलमेल् मंगा समुद्रतनया पाहि अलमेल् मंगा सुरपूजिता पाहि अलमेल् मंगा सरोजहस्ता देवी अलमेल् मंगा अलमेल् मंगा पाहि हरिप्रिये अलमेल् मंगा अलमेल् मंगा। ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருப்பதி திருச்சுவனூரிலிருந்து நேரலையில் ஒளிபரப்பை கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ போகஸ்ரீனிவாசர் சமேத ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை தாயாரின் கல்யாண திருக்கல்யாண உற்சவத்தை கண்டு களித்து வணங்கி பலன்களை பெற அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் வரவேற்கின்றது. சுவதினமான இன்று திருமண நாள் மற்றும் பிறந்த நாள் என்று கொண்டாடும் குருப்யோ நமஹ. ஓம் அஸ்மத் பரமேஷ்டி குருப்யோ நமஹ. ஓம் அஸ்மத் சர்வ குருப்யோ நமஹ. ஓம் நம ஸ்ரீ வாசுதேவாய சச்சிதானந்தமூர்த்தயே ஏகாயனத்ரயீம் யஸ்தாம் உபாசிக்ஷத் ஸ்ரீயை பிரபுः நம ஸ்ரீவத்சவாசின்யை யா ஜகத்க்ஷேமஹேதவே ஏகாயனமுபாதிக்ஷதேகதாய மகாத்மனே வாசுதேவபதாம் போஜ பரமாமிருதபாயினே ஏகதாய முனீந்திரௌघवन्दिताय நமோ நமः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वृतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. हरिः ओं तत्सत्. श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशिरमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु बृहस्पतिवासरयुक्तायां मखानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायां सप्तम्यां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्री वासुदेव प्रीत्यर्थम अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमनीला गोदा पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः
श्रीपद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ कल्याण उत्सवकर्मणि ఈ ఉత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం, పేరు, నక్షత్రం, మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు, నక్షత్రము మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు, నక్షత్ర రాశిని చేతులు జోడించి అమ్మవారిని బాగా ప్రార్థించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यवजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं अरोग दृढगात्रवज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ श्रीपांचरात्र भगवच्छास्त्र मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती. मंगलवाद्यम. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி சேனல் திருச்சுகனூரிலிருந்து நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ போக ஸ்ரீனிவாசர் சமேத ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை தாயாரின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்துறையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. சுபதினமான இன்று பிறந்த நாள், மங்கள திருமண நாள் என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களின் மேன்மையின் பொருட்டு பாலாழி நீ கிடக்கும் பண்பையாம் கேட்டேயும் காலாழும் நெஞ்சழியும் கண்சுழலும் நீளாழி சோதியாய் ஆதியாய் தொல்வினை என்பால் கடியும் நீதியாய் நிற்சார்ந்து நின்று என்று ஸ்ரீனிவாசர் சமேத அலர்மேல் மங்கை தாயாரின் திருவடி இணைகளில் பணிந்து தொல்வினைகளை கடிந்து அடியார்களுக்கு நன்மை பயக்க வேண்டி நிற்கும் பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி மீண்டும் வரவேற்கின்றது. இது ஒரு உபதேச ஸ்லோகமாக அமைந்துள்ளது. தாயாரின் கருணையை விவரிக்கும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சகஸ்ரத்தில் அவிதும் இஹதயா தேவி மார்கத்ய சக்தானு அகமபி சரணார்த்தி ஹந்தமஜன்னு பவாப்தௌ கட்டணம் உச்சிதம் ஆசீத் ஆவயோஹோ தெய்வயோகாத்து என்று போற்றியுள்ளது தாயாரே இந்த லக்ஷ்மி சகஸ்ரத்தில். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர் ஆராதனை, மேலே ஸ்தல சுத்தி, பிராட்டிமாருக்கும் எம்பெருமானுக்கும் கங்கண சமர்ப்பித்தல் ஆகிய கிரமங்களை ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகம முறைப்படி தொடர்ந்து செய்ய இருக்கின்றார். இப்பொழுது இந்த லக்ஷ்மி சகஸ்ரத்தின் அர்த்தத்தை சற்றே, இது விரிவான அர்த்தம், அர்த்த செறிவு புரிந்தது. மேலும் சற்றே நாம் இதை அனுபவிப்போம். கலஷ ஜலதி கன்யே ஹாத்துமே தது ந யுக்தம். தயை என்னும் குணமே பத்மாவதியாக எழுந்தருளி கோயில் கொண்டுள்ள இந்த திவ்ய க்ஷேத்திரத்தில் பக்தர்கள் படும் துன்பத்தை கண்டு பொறுக்க மாட்டாது அதை போக்குவதையே தமது தன்மையாக கொண்டவள் தாயார். தாயார் அல்லவா, பூமி தாயார் அல்லவா? குழந்தைகள் படும் கஷ்டத்தை கண்டால் அவள் பொறுப்பாளா என்ன? அதுவும் நாம் வேண்டி நின்றால் உடனே இறங்கி வந்து விடுவாள் இவள். அப்படிப்பட்ட இத்தனை கருணை தயை குணத்தை உடையவள் இவள். சம்சாரமாகிற கடலில் கரை காணாத பல இன்னல்களில் உடலும் அடியார்கள் தங்களின் குறைகளை தீர உய்வு பெற தாயாரை சரணமாக பற்றி அவளின் தயையை எதிர்பார்ப்பவர்களாக இருக்கின்றனர். இதோ நாம் கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். அர்ச்சக சுவாமி இவ்விடத்திலே விஸ்வக்சேனர் ஆராதனையை செய்து கொண்டு பக்தர்களின் பொருட்டு இவர்களின் குறையை தீர்க்க அவ்விடத்திலே விஸ்வக்சேனர் முன்னம் ஆவாகனம் செய்து தாயாரை நன்றாக பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார். மேலே இந்த சமயத்தில் நாமும் நன்றாக பிரார்த்தித்துக் கொள்ள வேண்டும். அச்சமயத்தில் பகவானின் அனுகிரகத்தாலே நல்ல அடியார்களின் சேர்க்கையாலே தாயாரை சரணமாக பற்றி உய்வு பெற வழி உண்டானது. அதுவன்றோ இப்பொழுது நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அர்ச்சக சுவாமி மூலமாக. அத்தகைய அடியார்களின் சேர்க்கையை விடாது பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இதை நழுவவே விடக்கூடாது. ஆகையிலே நல்ல அடியார்களோடு சேர்ந்திருப்பதே நலம். நல்ல புத்தி வளரும், நல்ல தன்மைகள் ஏற்படும், நல்ல சாந்தமான அனுகுணமான நல்ல புத்திகள் உருவாகும். இதே இந்த அணுக்கமான இந்த பக்தர்களின் அடியார்களின் கூட்டு பின்பு கிடைப்பது அரிதாகிவிடும் என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தாலே நாம் தெரிந்து கொள்ளபடி இந்த அடியார்கள் மூலமாகவே நாம் தாயாரை பற்றினால், பெருமானை பற்றினால் மேலும் நல்லது உண்டாகும் சொல்லுவார்கள் அல்லவா? இது உலக வழக்குதானே. இந்த கோவிலுக்கு சென்றால், இந்த தாயாரை சேவித்தால், இந்த பெருமானை சேவித்தால் நம் குறை தீரும்.
இது இங்கே விளக்கேற்றினால் இது நடக்கும் அது நடக்கும் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா? அதுதானே அடியார்களின் தொடர்பு, அதுதானே அடியார்களின் துணை. நமக்கு நல்லது செய்பவர்கள் அவர்கள் தானே நமக்கு அவர்கள் குறை தீர்ந்து அந்த அனுபவத்தால் தானே நமக்கு உபதேசிக்கின்றார்கள். அதுதானே நமக்கு வேண்டும். இவ்விடத்தில் சென்றால் குறை தீரும் என்பதுதான் நமக்கு வேண்டும். அதுதான் இந்த அடியார்களின் துணை வேண்டும் என்பது. இப்படிப்பட்ட தாயாரின் கருணை உள்ளத்தாலே நாம் நன்றாக சிறப்புடன் வாழ, அதற்காகத்தான் ஒரு சன்னதியில் விளக்கையான ஏற்ற வேண்டும். அகோராத்திரம் அனிர்வாணம் தீபம் ஆரோபயே நீ நரக சர்வ பாப விசுத்தாத்மா விஷ்ணுலோகே மஹீயத்தே என்பது வழக்கு. சாஸ்திரத்தில் உள்ளது விகிதம். பகவான் திருமுன்பு அணையாத அகண்ட தீபத்தை முடிந்த அளவில் சமர்ப்பிக்க வேணும். அளவற்ற பெருமைகளை பெறலாம். அவரவர் குலதெய்வங்களை தீபத்தில் எழுந்தளப் பண்ணுவர். குலதெய்வங்கள் தெரியாதவர்கள் கூட மனதார நிறைந்து இக்குல விளக்கில் குல தெய்வங்களை நினைத்து கொண்டு ஏற்றுவர். பெண் வகையாக பாவிக்கப்படும் விளக்கு சுடர் அக்னியின் ஒரு சாந்த நிலையாகும். அதுவே இந்த இடத்தில் அந்த சாந்த விமானத்தின் கீழே அன்றோ இந்த தாயார் எழுந்தருளி இருக்கின்றார். அனைவரையும் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று குலதெய்வங்கள் தெரியாதவர்கள் கூட ஸ்ரீனிவாசனை நினைந்து கொண்டு அந்த குலதெய்வத்தை அந்த விளக்கிலே ஆவாகனம் செய்வார்கள். விளக்கு என்னும் சொல்லுக்கு தன்னையும் தன்னை சுற்றியுள்ள பொருள்களையும் விளக்கி காட்டித் தருவது என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும். விளக்கு ஜுவாலை அழுக்கை அகற்றி புகையாக வெளியேற்றும். மேல் நோக்கியே ஜுவாலை ஓங்கும். அகவிளக்கு புறவிளக்கு என விளக்கு இருவகைப்படும். நம்மை நல்வழிப்படுத்துவது அகவிளக்கு, அதாவது அடியார்களின் தொடர்பு உள்ளது. ஆகவேதான் முன்னம் அந்த லட்சுமி சகஸ்ரத்தில் சாதித்தருளியது. இந்த அடியார்களின் துணை இருப்பின் இது செய்ய வேண்டும் இது செய்யக்கூடாது என்று சொல்வார்கள். நன்றாக நம் மனம் அறிந்து நம் நோவு அறிந்து நம் குறைகளை அறிந்து அவர்கள் உபதேசிப்பார்கள். நல்லது தீயது என்று வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஞானத்தை விளங்கச் செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த அடியார்கள் நம் தோழர்களாகவும் இருக்கலாம். இக்கருத்தை பொருள் விளங்க ஸ்ரீ அழகை மணவாள பெருமாள் நாயனார் என்னும் ஆச்சாரிய மகனீயர் ஆச்சாரிய ஹிருதயம் என்னும் கிரந்தத்தை அருளி செய்துள்ளார் அல்லவா? அதில் முன்னம் சூத்திர வடிவான குறிப்பில் காரணிகரான சர்வேஸ்வரன் அறிவிலா மனிதர் உணர்வென்னும் சுடர் விளக்கு ஏற்றி பிறங்கிருள் நீங்கி மேலிருந்த அந்த வேத விளக்கை கண்டு நல்லதும் தீயதும் விவேகிக்கைக்கு மறையாய் விரிந்த துளக்குமில் விளக்கில் கொளுத்தின பிரதீபமான கலைகளை நீர்மையினால் அருள் செய்தான் என்று அருளி செய்தார். இதன் விளக்கமாவது, இவ்வுலகில் கலியின் கொடுமையை நீக்கி உலக நன்மையின் பொருட்டு பகவான் அறிவின்மை என்னும் இருளை நீக்குவதற்காகவும் நல்லது தீயது இது என்று பகுத்து அறியும் ஞானத்திற்கு விளக்கின் ஒளி போன்ற அதற்கு பிரமாணமாக ஒப்பிட்டு சொல்கின்றார். சாஸ்திரங்களை கொண்டு நன்கு அறிந்து தெளிந்து கொள்வதற்கு ஞான சுடர் விளக்கு ஏற்றினேன் என்று ஆழ்வாரின் திருவாக்கையொற்றியே உள்ளது. அனைவருக்கும் அறிய முடியுமா சாஸ்திரங்களை? சாஸ்திரங்கள் அறிந்த தோழர்கள் மூலம் அடியார்கள் மூலம் நாம் தெளிந்து பகவான் திருமுன்பாக விளக்கு ஏற்றினால் சிறு விளக்கு ஏற்றினால் போரும். நன்றாக நாம் மேலே மேலே நன்றாக உயரக்கூடும். கொழுந்து விட்டு எரிகின்ற விளக்கானது பிரகாசத்தை உடையதாக இருக்கும். ஆக சிறந்த ஞானத்தையே விளக்கு என்பதே ஆன்றோர்களின் வாக்காக இவ்விடத்தில் உள்ளது. எல்லா உயிர்களையே காப்பாற்றுவனான ஸ்ரீயப்பதி என்னும் ஒளி உருவமான இந்த தாயார் எம்பெருமான் ஒளி விளக்கு என்றால் அந்த சுடர்தான் இந்த தாயார். ஞானத்தை சுரூபமாக உடையவனுமாயிருக்கின்ற பகவான் இந்த தாயார். இந்த விளக்கின் சுடராக திகழ்ந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு நன்மை தீமைகளை விவேக்கும் அறிவை அளிப்பவள் இந்த தாயார். இன்றும் அருள் செய்து கொண்டிருக்கிறாள். ஸ்ரீ பராசர பட்டர் ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஸ்தவத்தில் ஹர்த்தும் தமக சதசதீஷ விவேந்துமீஷோ மானம் பிரதீபமிவ காரணிகோ ததாதி என்று சாதித்தருளியுள்ளார். பக்தர்களை ஒரு காரணம் இன்றிக்கே தானே தீப ஒளியாய் நின்று திருவருள் புரிகின்றார்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். விடியற்காலையும் மாலை சந்தி வேளையும் விளக்கேற்றி தீபஜ்வாலையை தங்கள் குலவிளக்காக குலதெய்வமே எழுந்தருளி சுடரில் இருப்பதாக நினைந்து வணங்குவது சகல புண்ணியங்களையும் தரும் என்று விரத சூடாமணி என்னும் நூலில் விளக்கி கூடியுள்ளது. தீபத்தில் லக்ஷ்மி நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கின்றாள். மேலும் சாத்விக புராணமான கருட புராணத்தில் லக்ஷ்மி பூஜை அந்த மந்திரத்தில் அதிகாலை பொழுதில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் திருமுன்பு விளக்கேற்றுவது என்பது எல்லா சம்பத்துகளும் மங்களங்களையும் அருளும் என்பது உறுதிப்பட சொல்லுகின்றது. பிரதீப வந்தனம் காரியம் லக்ஷ்மி மங்களஹேதவே என்று உபதேசித்து அருளியுள்ளது அந்த நூலில். தீபதானம் செய்பவர்க்கு என்றும் கண் பார்வை கெடாது என்று மனு தர்ம சாஸ்திரத்தில் உள்ளதாக பெரியவர்கள் கூறுவார்கள். அக்னியின் மனைவியார் ஸ்வாகா தேவியின் தோற்றமே தீபஜோதி.
மேலே இந்த கிரமங்களை திருக்கல்யாண கிரமங்களை சேவித்து மேலே இந்த அர்த்தத்தில் சேவிப்பு. सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमन्द्रस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु सोमामध्यो व्यापिबच्छन्दसा अग्नशोचिषत् अभ्याक्षेरं व्यापिबत्कृङ्गाङ्गिरसो धिया ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु सोमो राजामृतज्ञ सुतर्जुषणा जहान्मृत्यम् ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु अभ्याक्षेरं व्यापिबत्कृङ्गाङ्गिरसो धिया ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु सोमामध्यो व्यापिबच्छन्दसा अग्नशोचिषत् ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबक्षत्रं वयस्वामं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमिन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु रेतोमोत्रं विजाति योनिं प्रविशदिन्द्रियं गर्भो जरायुणावृतौल्बन्धि जन्मना ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमिन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृत प्रजापतिः अश्रद्धामनृत दधाच्छद्धाग् सत्य प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमिन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु वेदेन रूपे व्यापिबत्सुता सुतौ प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु दृष्ट्वा परिश्रुतो रसज्ञ शुक्रं दृष्ट्वा परिश्रुतो रसज्ञ शुक्रेण शुक्रं व्यापिबत्पयस्वामं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग शुक्रमिन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु
श्रीसेन तन्द्रं मनसा मनीषिण ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ते अश्विना यज्ञज्ञसविता सरस्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणोऽभिषज्यन् तदस्य रूपममृतज्ञ सचेभिस्तिस्रोदुर्देवताः सज्ञररहणाः रोमाने षष्पेर्बहुधानतोक्माभिस्त्वगस्य मार्ग समाभवन्नलजाः तदश्विनाः भिषजा रुद्रवर्तने सरस्वती पयति पेशो अन्तरम् अस्थे मज्जानं मासारे कारोतरेण दधतो गवां त्वचे सरस्वती मनसा पेशलं वसुना सत्याभ्यां पयति दर्शतं वपुः रसं परिश्रुता नरोहेतन्नग्नहुर्धेरस्तसारन्नवेमा पयसा शुक्रममृतं जनित्रज्ञ सुरयामोत्राज्जनयं दरेतः अपामादिं दुर्मतिं बाधमाना ओवध्यं वातज्ञ सबुमन्दधारात् इन्द्रसूत्रमाहृदयेन सत्यं बोरोळाशेन सविता जजनः यकृत्क्लबानं वरुणोऽभिषज्यन्मतस्नवायव्यैर्नमेनातिपित्तम् आन्द्राणिस्थलेर्मधुपिण्डमानागुदा पात्राणि सुदुघ्रानधेनुः शेनस्य पत्रं न प्लेहा सचेभिरासन्देनाभिरुदरन्न माता कुम्भोपनिष्टोर्जनिता शचेभिर्यस्मिन्नग्रे गर्भो अन्तः कुम्भोपनिष्टोर्जनिता शचेभिर्यस्मिन्नग्रे गर्भो अन्तः प्राशर्व्यक्तशतधार उत्सो दुहेन कुम्भे स्वधां पितृभ्यः मुखज्ञ सदस्य शिर इत्सतेन जिह्वा पवित्रमश्विनासं सरस्वती चप्पन्नपायुर्भिषगस्य बालोपस्तिर्नशेपो हरसातरश्वी अश्वेभ्यां चक्षुरमदङ्ग्रहाभ्यां तेजो अविषासुतेनां पक्ष्माणि गोधूमे कुवलैरुतानि पेशोन शुक्रमसेदं वसादे अभिर्नमेषो न सेवेर्याय प्राणस्य पन्थः अमृतोग्रहाभ्यां सरस्वत्युपवागैर्यानन्नस्यानि बर्हिर्बदरैर्यजानाम् इन्द्रस्य रूपवृषभो बलाय कर्णाभ्यां श्रोत्रममृतङ्ग्रहाभ्यां यवहन बर्हिर्भुवि केशराणि कर्कन्धो जज्ञ मधुसारघं मुखाद आत्मनुपस्थेन वृकस्य लोममुखे श्मश्रोः निनव्याघ्रलोमां केशानशीर्षन्यससे श्रियै शिखासिंहस्य लोम स्विषेरिन्द्रियाणि अङ्गान्यात्मन् भिषजातदश्विनोत्मानमङ्गे
समाधात् सरस्वतिः इन्द्रस्य रूपज्ञशतमानमायश्चन्द्रेण ज्योतिरमृतं दधानाः सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्वेभ्यां पत्नी सुकृतं व्यभर्ति अपाग्रसेन वरुणो न साम्यं श्रियै जनयन् अप्सुराजा तेजः पशूनाग्रहविरिन्द्रियावत् परिश्रुता पयसा सारघं मधु अश्वेभ्यां दुग्धं भिषजा सरस्वत्या सुताभ्यामृतस्वम इन्दुः क्षत्रस्य नाभिरसे क्षत्रस्य योनिरसे मात्वाहिज्ञसेन्मामाहिज्ञसेः निशसादधृतौ रतो तरुणः पत्स्यस्वा साम्राज्याय सुक्रतोः मृत्योः पाहि विद्यात् पाहि देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां वोष्णाहस्ताभ्याम् अश्विनोर्भैषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा याभिषिञ्च मे सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्याय नाद्यायाभिषिञ्च मे इन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यशसेऽभिषिञ्च मे ओऽसि कथमोऽसि कस्मै त्वागायत्वा शुश्लोकस्वमङ्गलसत्याराजन् शिरो मे श्रेर्यशो मुखं ऋषिकेशाश्च श्मश्रूणि राजा मे प्राणो अमृतज्ञसम्राट् चक्षुर्विराट् श्रोत्रम् जिह्वा मे भद्रं वाङ्महो मनो मन्युट्स्वराट् भामाः मोदा प्रमोदा अङ्गुलिरङ्गनिमित्रं मे सहाः बाहो मे बलमिन्द्रियज्ञहस्तौ मे कर्मवीर्यम् आत्मा क्षत्रमुरोपमा पृष्ठर्मे राष्ट्रमुदरमग्रसौ ग्रीवाश्च श्रोणे ओरो अरत्नी जनोने विषमेङ्गने सर्वतः नाभौर्मे चित्तं विज्ञानं पायुर्मे पचितर्भासत् आनन्दनन्द ओण्डौ मे भगसौभाग्यं पसाः जङ्घाभ्यां पद्भ्यां धर्मास्मे विशिराजा प्रतिष्ठितः प्रतिक्षत्रे प्रतिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रतिष्ठामि घोषो प्रत्यङ्गेषु प्रतिष्ठाम्यात्मन् प्रतिप्राणेषु प्रतिष्ठामि पुष्टे प्रतिद्यावा पृथिव्योः प्रतिष्ठामि यज्ञे त्रया देवा एकादशस्त्रयस्तृग्स सुराधसः बृहस्पति पुरोहिता देवस्य सवितुः सवे
देवादेवैरवन्तु माम् प्रथमा द्वितीयस्तृतीया सत्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजर्भर्यजो अग्निशमेभिः अमा द्वितीया सत्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजर्भर्यजो अग्निशमेभिः सामान् ऋग्भर्यचः पुरोऽनुवाक्याभिः पुरोऽनुवाक्या याज्याभिर्याज्या वषट्कारैः वषट्कारा आहुतिभिराहुतयो मे कामान् समर्धयन्तु भूत् स्वाहा लोमानि प्रयधर्ममत्वं मानधिरागतिः मागसम् उपनतर्वस्वस्थे मज्जामानतिः यद्देवादेवहेलनं देवासश्चक्रमापयम् अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वान्मुञ्चत्वग्हसः यदि दिवा यदि नक्तमेनाग्नसि चक्रमापयम् वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वान्मुञ्चत्वग्हसः यद् जाग्रद्यद् स्वप्न येनाग्नसि चक्रमापयम् सूर्यो मा तस्मादेन सो विश्वान्मुञ्चत्वग्हसः यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभाया यदिन्द्रिये यच्छोद्रे यदर्ये यदेनश्चक्रमापयम् यदेकस्याधिधर्माणि तस्याव यजनमसि यदापो अग्न्या इति वरुणे शपामहे ततो वर्णनो मुञ्च अवभृथनि चुम्बुननि चेरुरसिनि चुम्बुना अवदेवैर्देवकृतमेनो यक्ष्यवमर्त्यैर्मर्त्याकृतं पुरुरावणो देवर्षस्पाहे समुद्रते हृदयमप्सन्तः सन्त्वाविसन्तोषधि ऋतापाः सुमेत्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रिया तस्तस्मै सन्तु योऽस्मान् वेष्टयं च वयं विष्मः द्रुपदादेव मुमुचानस्मिन्न स्नातो मलादिवा भूतं पवित्रेण वाज्यमापशुन्धन्तो मैनासः त्वद्वयं तमसस्परेष्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रासूर्य मगन्मज्योतिरुत्तमम् अपो अद्यान्वाचारिषज्ञरसेन समसृक्ष्महे पयस्वानग्न आगमान्तं मासग्सृज वर्चसा प्रजया च धनेन च एधोऽस्यधिषीमहे समिदसि तेजोऽसि तेजोमये धेहि समावर्त्य पृथिवी समुषा समसूर्याः समविश्वमिदं जगत् वैश्वानरज्योतिर्भूयासं विभून् कामान् व्यष्णवे
भो स्वाहा अभ्यादधामि समेधमग्ने व्रतपते त्वये व्रतं च श्रद्धां चोपे मे धेत्वा दीक्षितो अहम् यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं चौचरतः सः तल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेशं यत्र देवाः सहोऽग्निना यत्रेन्द्रश्च वायुश्च सम्यं चौचरतः सः तल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेशं यत्र सेदिर्न विद्यते अग्निशुनाते अग्निशु पृच्छतां परोषा परोः गन्धस्ते सोमामवतु मदायरसो अच्युतः सिञ्चन्ते परे सिञ्चन्त्युत्सञ्चन्ते पुनन्ते च सुराये बभ्रुवै मदे किं त्वा वदति किं त्वः धानावन्तं करम्भिनामपूपवन्त मुग्धिनम् इन्द्रप्रातर्जोषस्वनः बृहदिन्द्राय गायतमरो त्वावृत्रहन्तमम् येन ज्योतिरजनयन् ऋतावृधो देवं देवाय जाग्रवे अध्वर्यो अद्रेभिः सुतज्ञ सोमं पवित्र आनया पुनेहेन्द्राय पातवे यो भूतानामधिपतिर्यस्मिन् लोका अधिश्रुताः यैषे महतो महाग्रस्तेन गृह्णामि त्वामहं मये गृह्णामि त्वामहम् उपयामगृहेतोऽस्यश्वेभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्नः एष ते योनिरश्वेभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्नः प्राणपामे अपानपाश्चक्षुष्पाश्रोत्रपाश्च मे वाचो मे विश्वभेषजो मनसोऽसि विलायकः अश्विनकृतस्य ते सरस्वतीकृतस्येन्द्रेण सूत्राम्ना कृतस्य उपाहोत उपाहोतस्य भक्षयामि समेद्ध इन्द्र उषसा मणिः परोरुचा पूर्वकृत्वा वृधानः प्रभर्देवस्त्रुघ्नशता वज्राबाहुर्जघान रुद्रं विदुरो बबार नराशग्नसः प्रतिशोरो मिमानस्तनो न पात्प्रते यज्ञस्य गोभर्वपावन्मधुना समञ्जन् हिरण्येश्चन्द्रियजते प्रचेतोः क्रीडितो देवैर्हरे वां अभिष्टिराजुह्वानो हविषा शर्धमानः पुरन्दरो गोत्रभिर्वज्रबाहो रायादो यज्ञमुपानो जुषणः
युषाणो बर्हर्हरे वान्न इन्द्रः प्राचेनग्न सेदत्प्रतिशा पृथिव्याः रुप्रथा प्रथमानग् स्योनमादित्ये रक्तं वसोभि सजोषाः इन्द्रं दुरः कपश्यो धावमाना वृषाणयन्तु जनाय स्वपत्नेः वारो देवीरभितो विश्रायन्ताग् सुवीरा वीरं प्रथमाना महोभिः தாய் திவ்ய தம்பதிகளின் திருமுன்பு விளக்கேற்றுவது எல்லா சம்பத்துகளும் மங்களங்களையும் மருளும் என்று சற்று முன் சேவித்தோம் அல்லவா? பிரதீப வந்தனம் காரியம் லக்ஷ்மி மங்களஹேதவே என்று உபதேசித்து அருளியுள்ளது சாஸ்திர விகிதங்கள். தீபதானம் செய்பவர்க்கு என்றும் கண் பார்வை கெடாது என்று மனுதர்ம சாஸ்திரத்தில் உள்ளதாக பெரியவர்கள் கூறுவர்கள். அது உண்மைதான். அக்னியின் மனைவியான ஸ்வாகா தேவியின் தோற்றமே தீப ஜோதி. அதனால் கிரகங்களில் பெண்கள் கையால் விளக்கு ஏற்றி வணங்குவதே கிரகத்திற்கு சுபிக்ஷம் என்பர். கோவில் கர்ப்பகிரகத்திற்கு பெண்கள் செல்லக்கூடாது அல்லவா? எனவே அவ்விடம் விதிவிலக்கு. தீப ஒளியான லக்ஷ்மி தாயார் ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை சகலருக்கும் மங்களம் உண்டாக்க ஜோதி வடிவாக தேஜோமயமாக எழுந்தருளி அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். நாம் கண்டும் கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திருமாங்கல்ய தாரணத்தை रोचमान शोभन शोभमान कल्याण அலமேல் மங்கா గుట్టుగలదానికి కోరికే ఫలించును ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈ అలమేల్ మంగా
ते यायाते धामानि धामानि ते यायाते धामानि याते ते यायाते धामानि धामानि ते यायाते धामानि ते धामानि धामानि ते धामानि परमानि परमानि धामानि ते धामानि परमानि धामानि परमानि परमानि धामानि धामानि परमानि या परमानि धामानि धामानि परमानि या परमानि या परमानि परमानि या वमा वमाया परमानि परमानि या वमा वमाया या वमाया या वमाया या वमाया अवमाया या वमा वमाया मध्यमा मध्यमाया वमा वमाया मध्यमा या मध्यमा मध्यमाया या मध्यमा विश्वकर्मन् विश्वकर्मन् मध्यमा या मध्यमा विश्वकर्मन् मध्यमा विश्वकर्मन् विश्वकर्मन् मध्यमा मध्यमा विश्वकर्मन् नुतोत विश्वकर्मन् मध्यमा मध्यमा विश्वकर्मन् नुता विश्वकर्मन् नुतोत विश्वकर्मन् विश्वकर्मन् नुते मे मोत विश्वकर्मन् विश्वकर्मन् नुते मा विश्वकर्मन्निति विश्वकर्मन् उते मे मोतोते मा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानुदते पदं समूढमस्य पागुं सुरे तमाञ्जुहोते सर्वं वैभोर्नाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वैभोर्नाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ